Hello everyone, I'm Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. So you can like, share and subscribe my channel. In this channel you can find videos of CBSE grade 9 to 12 English subject which is absolutely beneficial for the students to score excellent marks. So if you are a keen learner then you should surely watch these videos made by me for my dear students. सो बच्चों आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे द इंटरव्यू जो कि क्लास 12th का चैप्टर है। पहले मैं आपको ऑथर के बारे में कुछ बताऊंगी। पहले हम इंग्लिश में कवर करेंगे ऑथर के बारे में, फिर हम हिंदी में कवर करेंगे, राइट? सो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इज द ऑथर ऑफ द इंटरव्यू चैप्टर. Basically, Christopher Sylvester wrote a book named as Penguin Book of Interviews, in which he had included a lot of important interviews which he had taken from 1859 to 1993 because this book was published in 1993. This chapter is taken from this book only, named as Penguin Book of Interviews. This chapter is divided into two parts. First part is the introduction taken from Penguin Book of Interviews, and second part is one of the interviews taken from Penguin Book of Interviews. अब मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी. बच्चों, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर द इंटरव्यू चैप्टर के ऑथर हैं. मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि आपके समझने के लिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़. इस बुक में क्रिस्टोफर ने जो भी अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट इंटरव्यूज़ रिटन में लिए थे वह सारे इंटरव्यूज़ इस बुक में डाल दिए थे. मीन्स 1859 से लेकर 1993 के सारे इंटरव्यूज़ क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने इस बुक में डाले थे और बुक का नेम था पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़. और 1993 में यह बुक पब्लिश की गई थी. यह चैप्टर द इंटरव्यू 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट में पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ का इंट्रोडक्शन पार्ट लिया है और सेकेंड पार्ट में इस बुक से एक इंटरव्यू निकालकर इस चैप्टर में डाला गया है. आई होप आपको थोड़ा ब्रीफ में समझ आ गया होगा. ठीक है, नाउ हियर वी गो. So this is part 1 is the introduction part taken from Penguin Book of Interviews. So part 1 क्या है? Introduction part है. पहले मैं इस पूरे introduction part को आपको इंग्लिश में समझाऊंगी, फिर मैं हिंदी में समझाऊंगी, right? So since the invention of interviews over 130 years ago, journalists are constantly taking interviews and it has become very common in journalism. Author tells that today every educated person have read several interviews and thousands of celebrities have been interviewed and many of them repeatedly. So author tells that everybody to some extent knows the functioning, methods and merits of interviews, right? So it is hardly different for anyone. Some people make big claims that the interview is the source of taking out the truth of celebrities or famous people. Okay? And the person who takes the interview is an artistic person because it is not a cup of coffee for anyone to do. But on the other hand, some celebrities have different perceptions about interviews, as they think that interviews show their negative image in front of the society and ruin their public image, and they get hugely trolled by everyone because of giving some answers in their interviews. Author says that those celebrities who takes interviews in wrong sense and doesn't find interviews as good medium of interactions are like those people who doesn't belong from modern culture and thinks that taking their photograph is like snatching a part of their soul from them. V.S. Naipaul, who is known as a writer and wrote many travel books, felt that some people or celebrities are majorly wounded by interviews and they lose their real basic nature because of interviews. Lewis Carroll, who was the writer of a very famous or demanding book among children, and till yet it is, which is named as Alice in Wonderland, was very scared of interviews because he didn't want to be treated as a famous celebrity by anyone, and thus he always made space from his relatives, interviews, and those fans who constantly chased him for his autographs, and later on he told his stories of success as how he silenced all those people who wanted to highlight him in public. This was a feeling of satisfaction for Lewis Carroll. So now students, Rudyard Kipling, who was very famous writer and he was extremely against interviews more than Lewis Carroll also. So on 14 October 1892, Rudyard Kipling's wife wrote in her diary that that day was completely ruined by two reporters from Boston, as she wrote in her diary that what her husband said to reporters. He said that the reason because of which he refused to be interviewed is because it is immoral and crime.
It is the way of criminal activity, like any person who does the physical attack on anyone. And Rudyard also made a statement that those who take interviews should get strict punishments. Rudyard said that people who are ready to give and take interviews are not respectable people of society. But Crippling was proved to be a person with fickle attitude, because after few years he himself took interview of Mark Twain, and all the statements made by Crippling regarding the interviews givers and takers were proved useless. And H.G. Wells, who was a renowned novelist, also found interview as a very pathetic or painful experience for the person who gives interviews. But after 40 years, he was himself found interviewing Joseph Stalin. So Saul Bellow, who was also a famous writer, so he was also willing to give interviews all the time, and he said once that interviews are like a death experience for anyone. But still, author says that interview is a great way of communication. Dennis Bryant once made a statement that any right or wrong perception of any strong personality is made because of interviews only. Through interviews only we come to know everything about anyone, as one asks the questions to another, and we get the required information of that particular celebrity or person. And because of this, the interviewer holds a power, and he can easily be influential for listeners or readers of that particular इंटरव्यू. सो बच्चों, अब ये जो पार्ट 1 है इसको मैं पूरा हिंदी में फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, अभी मैंने इंग्लिश में किया, अब मैं आपको हिंदी में करूंगी. राइट. सो बच्चों, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो कि पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू में से लिया गया है. और अब मैं पूरा इंट्रोडक्शन आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी. ये हम सभी जानते हैं कि 130 साल पहले ही इंटरव्यूज़ का इन्वेंशन हो गया था, और जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं वे तब से इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं. यानी इंटरव्यूज़ का चलन बहुत सालों से चलता ही आ रहा है, और अब इंटरव्यूज़ लेना जर्नलिज्म का बहुत कॉमन पार्ट माना जाता है. राइट. ऑथर ये बताते हैं कि आजकल जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वे इंटरव्यूज़ पढ़ते ही होंगे, और दूसरी तरफ जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे क्रिकेटर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, एक्टर्स हो गए, एक्सेट्रा, जो भी होते हैं वो इंटरव्यूज़ देते रहते हैं. और कुछ सेलिब्रिटीज़ तो कई बार लगातार ही अपने इंटरव्यूज़ देते हुए मिलते हैं. सो ऑथर ये बताते हैं कि आमतौर पर सभी लोगों को पता ही है कि इंटरव्यूज़ कैसे लिए जाते हैं, या कोई जो तरीका होता है इंटरव्यूज़ लेने का. फॉर एग्जाम्पल, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं इंटरव्यूज़ के. कुछ लोग बोलते हैं कि किसी का भी, यानी अगर किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लिया जाता है तो इसका मतलब है हमें उसकी लाइफ की कुछ सच्चाइयाँ आसानी से पता लग जाती हैं. और वहीं दूसरी तरफ जो पर्सन इंटरव्यू लेता है वो कोई आसान काम नहीं होता, वह भी कलाकार बंदा होता है जो इंटरव्यू ले पाता है. समझ में आया बच्चों. पर कुछ सेलिब्रिटीज़ या फिर नोन पर्सनालिटीज़ ये भी सोचते हैं कि इंटरव्यूज़ की वजह से उनकी पब्लिक इमेज काफ़ी ख़राब हो जाती है अगर वह इंटरव्यूज़ में कुछ भी अलग हटकर बोल देते हैं. ओवरऑल इंटरव्यूज़ की वजह से उनकी काफ़ी ट्रोलिंग हो जाती है, जो उनको बहुत बुरी लगती है. और सही भी बात है, किसी को भी बुरा लगेगा अगर उसकी ट्रोलिंग होगी, उसके बारे में गलत बातें बोली जाएंगी, हर्ट तो फील होगा ही. सो ऑथर की ये सोच है कि जो भी सेलिब्रिटीज़ इंटरव्यूज़ को नापसंद करते हैं और किसी भी हालत में इंटरव्यूज़ नहीं देना चाहते हैं, वे सोसाइटी के ऐसे लोग जैसे होते हैं जो मॉडर्न बिल्कुल भी नहीं है या फिर नैरो थिंकिंग रखते हैं. और अगर उनकी पिक्चर कोई लेता भी है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके मन के कोने को किसी ने चुरा लिया है. इस तरीके से यहाँ ऑथर ने 2 टाइप के लोगों को एक जैसा दिखाया है. राइट. वी.एस. नाइपॉल, जो कि एक फेमस राइटर की वजह से जाने जाते हैं, वह ये सोचते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ इंटरव्यू देते हैं वह अपने रियल नेचर को खो देते हैं. लुइस कैरल, जो कि एक बहुत फेमस बुक एलिस इन वंडरलैंड के राइटर थे, वो इंटरव्यू देने से हमेशा डरते थे और बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं देना चाहते थे. ओके, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं वो उनको महान दिखाना चाहते हैं. वह अपने रिश्तेदारों से, रिलेटिव से, इंटरव्यू लेने वालों से, या फिर वो लोग जो लगातार उनके पीछे भागते रहते थे ऑटोग्राफ्स के लिए, वो उनसे दूरी बनाकर रखते थे. और बाद में लुइस कैरल ने अपनी सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करी थी कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को दूरी रखा था जो उनको महान दिखाना चाहते थे. राइट. और इस फीलिंग को लुइस कैरल ने बहुत हद तक सेटिस्फाइंग फीलिंग कहा है.
अब बच्चों, रुडयार्ड किपलिंग जो थे, जो एक राइटर थे, वह इंटरव्यू के काफ़ी खिलाफ रहते थे। एक बार अक्टूबर 14, 1892 में रुडयार्ड की वाइफ ने अपनी डायरी में यह लिखा था कि एक बार बॉस्टन में आए दो रिपोर्टर्स ने उनको बहुत परेशान किया था। फिर रुडयार्ड की वाइफ ने डायरी में यह भी लिखा था कि उनके हस्बैंड रुडयार्ड ने रिपोर्टर से कहा था कि वह इंटरव्यू इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि इंटरव्यू देना मॉरल्स के खिलाफ होता है और क्राइम भी होता है। रुडयार्ड के अकॉर्डिंग किसी का भी इंटरव्यू लेना ऐसा ही होता है जैसे किसी पर फिजिकल अटैक करना। और रुडयार्ड यह चाहते थे जो भी लोग इंटरव्यूज लेते थे उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और रुडयार्ड यह सोचते थे कि जो लोग इंटरव्यूज लेते हैं या देते हैं वह समाज के अच्छे और इज्जतदार लोग नहीं होते हैं। ऐसा रुडयार्ड किपलिंग का सोचना था। पर कुछ सालों बाद रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी ही कही हुई बातों पर उल्टा काम किया था और फिर उन्होंने ही मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया, जिसकी वजह से एक तरह से उनकी एक जैसी सोच नहीं दिखी और उनकी कही हुई सारी बातें यूजलेस प्रूव हो गईं। ऐसे ही एच.जी. वेल्स, जो कि बहुत फेमस नॉवलिस्ट थे, उन्होंने वह भी ये सोचते थे कि कोई भी अगर इंटरव्यू देता है तो उसके लिए वह एक्सपीरियंस बहुत पेनफुल होता है। ओके, एंड 40 इयर्स के बाद एच.जी. वेल्स ने भी रुडयार्ड किपलिंग की तरह जोसेफ स्टेलिन का इंटरव्यू लिया। इस तरीके से रुडयार्ड और एच.जी. वेल्स दोनों ही अपनी बातों पर नहीं रहे और अपनी कही हुई स्टेटमेंट्स को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। सॉल बिलो, जो कि एक बहुत फेमस राइटर थे और खुद भी इंटरव्यू देने को बहुत उत्सुक रहते थे, उन्होंने एक बार कहा था कि इंटरव्यू देना एक तरीके का मरने जैसा होता है, लाइक डेथ एक्सपीरियंस जैसा होता है। पर फिर भी ऑथर ये समझते हैं, मींस क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ये समझते हैं कि इंटरव्यू एक ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से हम अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। डेनिस ब्राइन ने एक बार कहा था कि किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में सही या गलत सोचना हमें उसके इंटरव्यू देखकर या पढ़कर ही पता चलता है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला क्वेश्चंस ही इस तरीके से पूछता है कि उस सेलिब्रिटी की पूरी पर्सनालिटी का बेसिक नेचर सामने आ जाता है। इस तरीके से जो इंटरव्यू लेता है, मींस जो इंटरव्यूअर होता है, उसके हाथ में बहुत पावर आ जाती है और वो काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस कर जाता है, जो लोग सुनते हैं उसका इंटरव्यू, देखते और पढ़ते हैं। राइट स्टूडेंट्स? सो बच्चों, ये मैंने आपको पूरा पार्ट 1 एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में समझाया है। अब मैं आपको पार्ट 2 समझाऊंगी, ठीक है? एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में, right? So in this part 2, one of the interviews taken from Penguin Book of Interviews, which was written by Christopher Sylvester. So this interview, the interview which I will be going to explain you, is an extract from an interview of Umberto Eco. The interviewer is Mukund Padmanabhan, who from the Hindu newspaper, from the Hindu, which is a renowned newspaper. Okay, so Umberto Eco was a professor of the University of Bologna in Italy, and he had a strong reputation as a scholar for his ideas on semiotics, literary interpretation, and medieval aesthetic. Now I would like to explain you the meanings of all these three terms. Students, semiotic means study of sign. Sign is anything that convey meaning. Drawings can be signs, photographs can be signs, traffic signs, etc. So students, now literary interpretation means the deep analysis of a story or text, and medieval aesthetic means how the people of middle age took the beauty or appreciate the beauty. Right now, I hope that the meanings of semiotics, literary interpretation, and medieval aesthetic are clear to you. Right? So this person, Umberto Eco, got recognition because of his ideas on these three topics. Right? And those three topics were semiotics, literary interpretation, and medieval aesthetic. And later on, Umberto Eco turned to fictional writing, wrote academic text, essays, children's books, newspapers, articles. So in 1980, his novel named as The Name of Rose sold more than 10 million copies, and he became extremely famous. In the same way, he achieved success for his literary works. ओके, सो ये जो छोटा सा पैराग्राफ है इसको अब मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी। सो बच्चों, पार्ट 2 में क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर की लिखी हुई बुक पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज में से एक इंटरव्यू लिया गया है, ठीक है? इस बुक में से एक इंटरव्यू निकालकर इस पार्ट 2 में डाल दिया है। वो पूरा इंटरव्यू हम पढ़ेंगे। वो इंटरव्यू किसके बीच में है? मुकुंद के बीच में है और अम्बर्तो इको के बीच में है। मुकुंद इंटरव्यू ले रहा है और अम्बर्तो इको इंटरव्यू दे रहा है, राइट? और पार्ट 2 में हम वही इंटरव्यू पढ़ेंगे। यह इंटरव्यू जो हम पढ़ने वाले हैं वह इंटरव्यू मुकुंद पद्मनाभन ने लिया है अम्बर्तो इको का। मुकुंद
जो पद्मनाभन है वो द हिंदू न्यूज़पेपर, जो कि काफ़ी जाने माना न्यूज़पेपर है, वहाँ के जर्नलिस्ट थे। और अम्बर्टो इको यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गाना, जो कि इटली में है, वहाँ के प्रोफेसर थे। और उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पहचान बनी हुई थी अपने कुछ कामों की वजह से। जैसे उन्होंने अपने आइडियाज सिमियोटिक्स में दिए थे, लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस में दिए थे, और मिडिवल एस्थेटिक पर दिए थे। इसी वजह से वो बहुत फेमस हुए। अब मैं आपको इन तीनों टर्म्स का मतलब समझाना चाहूँगी। सिमियोटिक्स का मतलब होता है साइन लैंग्वेजेस की स्टडी। सो जो भी चीज़ कोई मीनिंग कन्वे करती है उसे साइन कहते हैं। ड्राइंग्स भी साइंस देती हैं, फोटोग्राफ्स भी साइंस देती हैं, ट्रैफिक्स भी साइंस देते हैं। अब लिटरेरी इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी भी स्टोरी या टेक्स्ट को पूरी तरह से एनालाइज करना। और मिडिवल एस्थेटिक का मतलब होता है कि मिडिल एज के लोग ब्यूटी को किस तरीके से अप्रिशिएट करते थे। मुझे लगता है बच्चों, आपको सिमियोटिक्स, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन और मिडिवल एस्थेटिक का मतलब समझ में आ गया होगा। इन्हीं तीन चीज़ों पर आइडियाज देके अम्बर्तो इको काफ़ी फेमस और रेप्यूटेड माने जाते थे। बाद में अम्बर्तो इको ने फिक्शनल राइटिंग करी, मीन्स काल्पनिक कहानियाँ लिखी, ओके, एसेज लिखे, बच्चों के लिए बुक्स लिखी, न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स लिखे। और 1980 में अम्बर्तो ने एक नॉवेल लिखी जिसका नाम था द नेम ऑफ रोज, जो इतनी फेमस हुई कि उसकी 10 मिलियन कॉपीज मार्केट में सोल्ड हुई, ओके, मार्केट में बिकी। इस नॉवेल की वजह से अम्बर्तो को भरपूर फेम और नेम आम जनता के बीच में मिला, और वह अपने लिटरेरी वर्क्स और नॉवेल की वजह से जाने जाते थे, राइट। अब बच्चों, मैं आपको इंटरव्यू पढ़ के पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी। यहाँ पे आपको इंग्लिश में पूरा इंटरव्यू दिया है, पर मैं आपको पूरा हिंदी में इंटरव्यू का एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है। बच्चों, अब मैं स्टार्ट करती हूँ, राइट। मुकुंद जो कि इंटरव्यू ले रहे हैं, वो इंटरव्यूअर हैं, वो क्या कहते हैं अम्बर्तो से। मुकुंद अम्बर्तो इको से ये क्वेश्चन करते हैं कि डेविड लॉर्ड, जो कि एक फेमस नॉवलिस्ट है, वह कहते हैं कि कोई एक इंसान इतने सारे काम कैसे कर सकता है जैसे इको कर लेता है। बच्चों, यहाँ आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगी कि कुछ ही देर पहले हमने ये पढ़ा था कि अम्बर्तो इको ने कई सारे लिटरेरी वर्क्स किए और एक बहुत फेमस नॉवल भी लिखी थी, द नेम ऑफ रोज। इस इंटरव्यू में जो मुकुंद है अम्बर्तो से यही बात पूछ रहे हैं कि डेविड लॉर्ड जैसे राइटर्स ये जानना चाहते हैं कि आप इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं। इस बात पर अम्बर्तो बोलते हैं कि वह आमतौर पर लोगों पर अपना इस तरीके का इंप्रेशन बना लेते हैं कि वे बहुत सारे काम कर रहे हैं। अम्बर्तो ऐसा बोलते हैं मुकुंद को, पर अम्बर्तो को ऐसा लगता है कि वह एक ही काम कर रहे हैं। अब मुकुंद उनसे पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं। अम्बर्तो बोलते हैं कि उनका फिलॉसफी में इंटरेस्ट रहा है, जिसकी वजह से वे नॉवेल्स लिखते हैं, एकेडमिक्स वर्क्स करते हैं, और बच्चों के लिए जो अम्बर्तो बुक्स लिखते हैं वे शांति पर बनी होती हैं, मीन्स पीस वाली होती हैं बुक्स, जिसमें भी अम्बर्तो का फिलोसफिकल इंटरेस्ट दिखता है। अब अम्बर्तो कहते हैं कि उनको उनका एक सीक्रेट है। अम्बर्तो मुकुंद से क्वेश्चन करते हैं और कहते हैं कि अगर पूरे यूनिवर्स में सारी खाली जगह हटा दी जाए तो यह यूनिवर्स हमारी हथेली जितना हो जाएगा। अब अम्बर्तो कहते हैं कि हम सबकी ज़िंदगी में भी काफ़ी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, और उन एम्प्टी स्पेसेस को इंटरस्टिसेस कहते हैं। बच्चों, इंटरस्टिसेस का मतलब होता है कि अगर मुकुंद अम्बर्तो के घर जाए और अगर एलिवेटर पर खड़े होकर ऊपर आने के लिए आए, एलिवेटर पे खड़े होकर ऊपर आए और अम्बर्तो मुकुंद का वेट कर रहा हो, जो ये खाली समय होता है बीच में, उसको, जिसमें अम्बर्तो मुकुंद का वेट कर रहा होता है जब मुकुंद एलिवेटर से ऊपर आने वाला होता है, उसको इंटरस्टाइस कहते हैं। आपको समझ आ रहा है। और फिर अम्बर्तो मजाक करते हैं मुकुंद से कि जितना टाइम मुकुंद एलिवेटर से ऊपर आने में लगाएंगे उतनी देर में तो अम्बर्तो एक आर्टिकल भी लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा माहौल लाइट सा बनाया गया है, राइट। अब मुकुंद पूछते हैं कि मुकुंद अब अम्बर्तो से कहते हैं कि कोई भी आपके जितना काम नहीं कर सकता। अम्बर्तो जिस तरीके की राइटिंग करते हैं उसमें एक मज़ेदार बात होती है और पर्सनल टच भी आता है। मुकुंद कहते हैं कि आपकी राइटिंग और राइटर्स से काफ़ी डिफरेंट है, और राइटर से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि रेगुलर एकेडमिक राइटर्स काफ़ी बोरिंग राइटिंग लिखते हैं जिसमें कोई पर्सनल टच नहीं होता। फिर मुकुंद अम्बर्तो से पूछते हैं कि क्या आप सोच समझकर पर्सनल टच देकर इनफॉर्मल अप्रोच रखते हैं अपनी राइटिंग में, या फिर आपका एक नेचुरली आप ऐसा लिख लेते हैं। अम्बर्तो कहते हैं कि जब उन्होंने पेज भी चेंज करूंगी। अम्बर्तो कहते हैं कि जब उन्होंने डॉक्टरेट बनने के लिए अपना रिसर्च पेपर इटली में दिया था, तब एक प्रोफेसर ने अम्बर्तो को कहा
कि जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं जिनको डॉक्टरेट डिग्री चाहिए होती है, वह एक सब्जेक्ट पर खूब काम करते हैं, फिर उस टॉपिक पर गलत इलॉजिकल बातें करेंगे, लिखेंगे, और फिर उन इलॉजिकल बातों को गलत प्रूव करेंगे और फिर कंक्लूजन देंगे। उसी तरह प्रोफेसर अंबर्तो इको को कहते हैं कि अंबर्तो ने अपने रिसर्च पेपर में अपनी स्टोरी बताई, अपनी कोशिशें और गलतियां भी बताई। फिर अंबर्तो इको के जो रिसर्च पेपर की प्रोफेसर ने तारीफ करी और कहा कि अंबर्तो का तरीका रिसर्च का बिल्कुल राइट है। फिर प्रोफेसर ने अंबर्तो इको के रिसर्च पेपर पर एक बुक भी पब्लिश करी थी। उस समय पर जब अंबर्तो 22 के थे, उन्होंने ये समझ लिया था कि उनको अपनी रिसर्च एक स्टोरी की तरह लिखनी चाहिए। इसी वजह से अंबर्तो अपनी राइटिंग्स में पूरी स्टोरी बताते हैं, और इसी वजह से अंबर्तो ने नॉवेल्स इतना लेट स्टार्ट किया, जब वो 50 ईयर्स के अराउंड होंगे। अंबर्तो बताते हैं कि उनको याद है कि उनका एक फ्रेंड रोलन ब्राट्स हमेशा एक बात से दुखी रहता था। क्यों दुखी रहता था? कि वह ऐसे नहीं लिख पाता था, ऐसे राइटिंग करता था, सॉरी, और नॉवेल्स नहीं लिख पाता था। रोलैंड क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते थे, पर इससे पहले वो करते उनकी डेथ हो गई। पर अंबर्तो कहते हैं कि उनको कभी ऐसी नीड नहीं लगी, ऐसा फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ कि वो कभी नॉवेल्स लिखें। उन्होंने खुद को ज़्यादा कभी क्वेश्चन नहीं किया, राइट? कभी भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया और अपने आप को ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया, और उन्होंने नॉवेल्स लिखना अचानक एक दिन शुरू कर दिया था। एक बार अंबर्तो के पास काम करने को कुछ नहीं था, उन्होंने नॉवेल्स लिखना स्टार्ट कर दिया था। नॉवेल्स लिखना अंबर्तो के लिए एक बड़ी सैटिस्फाइंग फीलिंग थी, स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही सैटिस्फाइंग चीज़ थी। मुकुंद पूछते हैं अंबर्तो से कि एक एकेडमिक होने के बावजूद एक फेमस नॉवेलिस्ट आप बन गए हैं द नेम ऑफ रोज की वजह से, और उसके बाद भी अंबर्तो ने 5 नॉवेल्स लिखी और 20 तक तो स्कॉलरली वर्क्स करे हैं। अंबर्तो बोलते हैं कि 20 नहीं करे हैं, 40 से ज़्यादा स्कॉलरली वर्क्स करे हैं मैंने। मुकुंद कहते हैं, मुकुंद बहुत शॉक्ड हो जाते हैं 40 स्कॉलर्स उनके स्कॉलरली वर्क सुन के, ओके, बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। फिर मुकुंद कहते हैं अंबर्तो उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने सिम्योटिक्स, जो कि साइंस स्टडी होती है, उस पर आर्टिकल्स लिखे हैं, और ये फ्यूचर जनरेशन के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। मुकुंद कहते हैं कि अगर कॉमन लोगों से अंबर्तो का नाम पूछा जाए तो वह लोग अंबर्तो को नॉवलिस्ट की तरह ज़्यादा जानते हैं। क्या ये चीज़ अंबर्तो को परेशान करती है? ऐसा मुकुंद अंबर्तो से पूछते हैं। अब देखो इस पे अंबर्तो क्या बोलते हैं। अंबर्तो कहते हैं कि उनको थोड़ा बुरा लगता है कि लोग उन्हें सिर्फ नॉवलिस्ट की तरह जानते हैं, बट वे एक प्रोफेसर हैं और एक यूनिवर्सिटी के, जो कि और संडेज को नॉवल लिखते हैं। ये कोई मजाक बात नहीं है कि वो एक रिसर्च स्कॉलर हैं, वो एक प्रोफेसर हैं, ठीक है। अंबर्तो कहते हैं कि वह एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, और बजाय कि पेन क्लब्स मीटिंग्स पे जाए, मतलब वहाँ नहीं जाते हैं पेन क्लब्स मीटिंग में, और राइटर्स की मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं और अपने कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं। अंबर्तो कहते हैं कि वह मेनली अपने आप को रिसर्च वर्क का हिस्सा मानते हैं, ठीक है। बट अंबर्तो कहते हैं कि ठीक है, लोग उन्हें सिर्फ नॉवेल्स की वजह से जानते हैं तो क्या गलत है, और नॉवेल्स की वजह से भी वे काफ़ी लोगों तक पहुंच पाते हैं। और कहते हैं वे सिम्योटिक्स यानी जैसे टॉपिक्स पर 10 मिलियन ऑडियंस में तो नहीं जाने जा पाएंगे जितना नॉवेल्स की वजह से जाने जा पाएंगे, क्योंकि लोगों को सिम्योटिक्स में क्या इंटरेस्ट होगा, साइंस स्टडी में क्या इंटरेस्ट होगा, नॉवेल्स में तो फिर भी लोगों को इंटरेस्ट आ जाता है। मुकुंद बोलते हैं, अंबर्तो से कहते हैं कि उनकी नॉवल द नेम ऑफ रोज काफ़ी सीरियस नॉवल है और एक डिटेक्टिव की कहानी है, और दूसरी तरफ मेटाफिजिक्स और मिडीवल हिस्ट्री, जो कि मेडिवल हिस्ट्री को भी ये नॉवल कवर करती है। फिर भी बहुत लोगों ने इस नॉवल को पसंद किया है। तो क्या अंबर्तो को ये चीज़ ने पजल नहीं किया कि इतनी सीरियस नॉवल पे, इतने सीरियस टॉपिक पे नॉवल होने के बाद भी रीडर्स को नॉवल ये काफ़ी पसंद आएगी? तो इस पर अंबर्तो क्या बोलते हैं, अंबर्तो जोक करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो कोई पजल नहीं हुआ हूँ, पर ज़रूर जर्नलिस्ट और जो पब्लिशर्स होते हैं वो ज़रूर पजल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लोगों को फालतू बातें पसंद आती हैं और डिफ़िकल्ट बुक्स लोग पसंद नहीं करते हैं। अंबर्तो कहते हैं कि इस प्लैनेट में 6 बिलियन लोग रहते हैं और द नेम ऑफ रोज की 10 to 15 मिलियन कॉपी सोल्ड हुई हैं। इस तरीके से अंबर्तो कुछ लोगों तक पहुंच पाए हैं, पर यह ऑडियंस वही है जिन्होंने अंबर्तो की नॉवल पढ़ी है, जो थोड़ी हार्ड राइटिंग को पढ़ने में बिलीव रखते हैं। अंबर्तो कहते हैं कि 9 बजे के बाद वह भी कुछ इंजॉयबल शोज देखते हैं, पर पूरा दिन उनको इतने इंजॉयबल शोज देखने का मन नहीं होता। इसी तरह इजी एंटरटेनमेंट तो सबको अच्छा लगता है, इजी राइटिंग तो सबको अच्छी लगती है, पर फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको डिफ़िकल्ट रीडिंग पसंद आती है। मुकुंद बोलते हैं, वो कहते हैं अंबर्तो की नॉवल को इस वजह से सक्सेस तो नहीं मिली कि वह नॉवल मिडीवल हिस्ट्री पर बनी थी। मुकुंद ने क्वेश्चन किया अंबर्तो से। अंबर्तो कहते हैं कि हो सकता है ये सच हो,
कि अब अम्बर्तो मुकुंद को एक स्टोरी सुनाते हैं। वो कहते हैं हो सकता है ये सच हो, अब मैं तुमको एक स्टोरी सुनाता हूँ, जैसे कि एक चाइनीज वाइजमैन हर बात की एक स्टोरी सुनाता है, ठीक है। सो अम्बर्तो अब बताते हैं मुकुंद को कि एक बार अमेरिकन पब्लिशर थी जिन्होंने अम्बर्तो की बुक को पब्लिश करा था, ठीक है। तो उनको बुक तो पसंद आई थी, पर उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 3000 से ज़्यादा कॉपीज़ उनके कंट्री में सेल हो जाएंगी। तो उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि उनके जो कंट्री के लोग हैं उनको कैथेड्रल यानी चर्च की एक ब्रांच होती है वो भी नहीं देखा है वहाँ के लोगों ने, उनको लैटिन भी पढ़नी नहीं आती है, ठीक है। तो उस पब्लिशर ने बोला कि अमेरिकन पब्लिशर ने 3000 कॉपीज़ के पैसे ही दिए अम्बर्तो को। बट लास्ट में 2 से 3 मिलियन कॉपीज़ यूएस में सेल हुई थी। अम्बर्तो कहते हैं उनकी बुक से पहले ही मिडीवल पास्ट पर बुक्स लिखी जा चुकी हैं, पर उनकी बुक की सक्सेस एक मिस्ट्री की तरह है। सो अम्बर्तो भी ये बात मानते हैं कि उनको भी एक मिस्ट्री लगती है अपनी बुक की सक्सेस। उनको नहीं आइडिया है कि उनकी बुक इतनी सक्सेसफुल क्यों हो गई, कोई भी पता नहीं लगा पाया अभी तक। अम्बर्तो को लगा कि अगर द नेम ऑफ रोज एक 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखी जाती तो इस बुक को इतनी सक्सेस नहीं मिलती। तो उनको ऐसा लगता था 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखी जाती तो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। उनके लिए बहुत मिस्ट्री थी ये बात। ये बुक इतनी फेमस हो गई बच्चों कि ये एक मिस्ट्री की तरह थी अम्बर्तो के लिए, राइट। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का पूरा एक्सप्लेनेशन एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में दिया है, बहुत अच्छी तरह से। So I hope this video has given you the absolute clarity, as you can find that I have given every paragraph's explanation in Hindi and English to make this chapter clear and interesting. जिनको हिंदी में अच्छे से समझ आता है उनके हिंदी के लिए, जिनको इंग्लिश में समझ आता है उनके इंग्लिश के लिए, राइट। सो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के बीच में फैलाइए, ओके। And don't forget to subscribe this channel, and its name is Impactful Learning with Nupur. Thank you so much.